चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं. लेट अस डिस्कस द 9th फंक्शन. ओके, देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया था. वी हैड सीन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन. वी हैड सीन mod x into x. Continuing on the same line, now let us discuss addition of modulus function and identity function. So we will be discussing x plus modulus of x. जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया था ना, अभी एडिशन डिस्कस करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन भी डिस्कस करते हैं, फिर डिवीजन भी डिस्कस करते हैं. ओके, लेट अस डिस्कस ऑल द 4 एस्पेक्ट्स. सो वी नाउ विल सी x plus modulus of x, दैट इज एडिशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन. अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी. इसकी डेफिनेशन होगी f of x will be, let us define x greater than equals to 0 and x less than 0. x greater than equals to 0 के लिए mod x would be x. So this would be x plus x which is twice of x. और less than 0 के लिए mod x will give me minus x. We have x minus x which is 0. So इसका कर्व कुछ इस तरीके का होगा. ओके, ग्रेटर देन 0 के लिए दिस ग्राफ इज ट्वाइस ऑफ x. ओके, एंड लेस देन 0 के लिए दिस इज 0. सो दिस इज माई ग्राफ फॉर mod x प्लस x. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए वेरी क्लियरली. रेंज इज ऑल रियल नंबर्स union 0. Domain is set of all real numbers. Even odd we cannot define. Increasing है function, ये लिख सकते हैं. Very clearly many one function है. और बताइए even नहीं, even odd we cannot define. Many is to one, increasing, domain, range, continuous है. और कोई प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. और इज दैट ऑल? आई थिंक दिस इज ऑल. कुछ और आएगा तो वी कैन ऐड. ओके, नेक्स्ट ऑन द सेम लाइन लेट अस डिस्कस देयर सब्ट्रैक्शन. ओके, सो f of x इक्वल्स टू x माइनस mod x. ओके, अभी हमने x प्लस mod x किया था, हम x माइनस mod x करते हैं. सो फॉर दिस f of x विल बी x greater than equals to 0, less than 0. x greater than equals to 0 पे mod x will give me x, so we will have x minus x which is 0. और x less than 0 पे x minus x which will give me twice of x. So for now this graph x is greater than equals to 0 पे 0 है और less than 0 पे twice of x है. तो इसका कर्व कैसा बनेगा. अब देखिए ग्रेटर देन 0 पे तो 0 हो जाएगा और लेस देन 0 पे इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ x. ट्रू. इसकी प्रॉपर्टीज बताइए. इन दिस केस रेंज इज ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स यूनियन 0. सारे नेगेटिव रियल नंबर्स इस वक्त रेंज में हैं. डोमेन है the complete set of real numbers. Increasing function है. Strictly increasing नहीं कह रही हूँ, सिर्फ increasing कह रही हूँ. Many is to one है and continuous. All the same properties that we had discussed earlier. Okay. Okay. Perfect. Now the interesting one is this one, which is mod x upon x. Modulus of x upon x. And we call this function a special name. We have given this one a special name which is signum function. इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं. अब देखिए इस फंक्शन को आप डिफाइन कीजिए. When I define this,
f of x same x greater than equals to 0 and x less than 0. x greater than equals to 0 के लिए we'll be having x upon x which will give me 1, and for f x less than 0 it is going to give me minus x upon x which is minus 1. and for very clearly इस function में हम x को define, x को 0 नहीं put कर सकते because 0 upon 0 is not gonna be defined. So for x equals to 0 this function is not defined. So जल्दी से बताइए इस function की domain होगी क्या? इसकी domain होगी real numbers minus 0. True? अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. 0 पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिफाइन ही नहीं है. ओके अब देखिए x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन इज +1. सो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 द फंक्शन इज गोइंग टू हैव अ वैल्यू ऑफ +1. 0 पे not defined. Okay, and for all x less than 0 the function is going to have a value of -1. तो 0 पे not defined. So the range of this function is going to be just -1 and 1. Perfect. function many one है, not continuous at 0. Even odd we cannot define. Increasing decreasing I mean makes no sense because constant है. Okay, so I hope this function is clear with everyone. This is called as signum function. और इसको ही लिखने का एक और तरीका है P1 denoted by signum of x. Okay, there is one more notation to write the same function, that is signum function. Okay, now 12th one that we will be discussing is an important one, which is greatest integer function. We have greatest integer function, or we even usually denoted it by square bracket x. ये फंक्शन का यूज तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल बी स्टडिंग दिस फंक्शन, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट x. अब इसकी डेफिनेशन कहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और equal to x. See, the definition is giving, give me greatest integer less than or equals to x. अब बात समझिए, 0 से लेकर 1 तक की जितनी भी वैल्यूज होगी उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगा. फॉर एग्जांपल लीजिए 0.5. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 0.5 will be 0. Greatest integer less than or equals to 0.7 would be 0. Similarly 1 से लेकर की 2, 1 closed interval to 2 open interval, इनमें greatest integer function की वैल्यू क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल 1.1, 1.5. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.5. ऐसा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 1.5 से छोटा हो या उसके इक्वल हो. ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 1.5 से छोटा हो या उसके इक्वल हो तो वो हो जाएगा 1. सिमिलरली 0 से ले सिमिलरली -1 से लेकर 0 तक सबसे बड़ा इंटीजर जो -0.5 से बड़ा हो, ऐसा इंटीजर जो -0.5 से बड़ा हो, बताइए क्या होगा. जल्दी से बताइए. इंटीजर -0.5 से 0, -0.5 से सबसे बड़ा इंटीजर बताइए. सबसे बड़ा इंटीजर जो -0.5 से छोटा हो, या दिस वे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -0.5. सबसे बड़ा इंटीजर जो -0.5 से छोटा हो वो होगा -1. ट्रू.
अब इसका ग्राफ समझिए कैसा बनेगा. आई थिंक आई विल बी नीडिंग मोर स्पेस टू ड्रॉ दिस ग्राफ. ओके, देखिए, let me plot some values over here. Let us say 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. ओके, अब देखिए 0 से 1, 0 से 1 में जितनी भी वैल्यूज आती है, सी 0 क्लोज्ड इंटरवल एंड 1 ओपन इंटरवल. 0 से 1 तक में जितनी भी वैल्यूज आती है उनके लिए सबसे बड़ा इंटीजर जो उनसे छोटा होगा वो होगा 0.5. ठीक है, सबसे बड़ा इंटीजर जो 0.5 से छोटा हो वो है 0. सो इट वुड बी समथिंग ऑफ दिस वन. 1 क्लोज्ड इंटरवल बिकॉज वी आर इवन इंक्लूडिंग द टर्म इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. सो 1 से सबसे बड़ा सबसे बड़ा इंटीजर जो 1 से छोटा हो या इसके इक्वल हो तो वो 1 ही होगा. ठीक है, 1 से 2 तक के लिए दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1. 1 ओपन इंटरवल एंड 2 क्लोज्ड इंटरवल 2. फिर 2 से 3 तक के लिए ये वैल्यू होगी 2. ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना, जो डॉट्स है वो क्लोज्ड इंटरवल है. ठीक है, दिस डॉट, यहाँ पे जो डॉट है, यहाँ पे जो डॉट है, ये सब क्लोज्ड इंटरवल्स है. जो सर्कल्स है, हॉलो सर्कल्स, वो ओपन इंटरवल है. ओके, 3 से 4 तक के लिए मुझे बताइए. 3 से 4 तक द वैल्यू इज गोइंग टू बी 3. सो 3 पे क्लोज्ड इंटरवल, 4 पे ओपन इंटरवल. ठीक है, 3.4 सबसे बड़ा इंटीजर जो 3.4 से छोटा हो तो 3. ओके, सिमिलरली -1 to 0 सबसे बड़ा इंटीजर जो -0.5 से छोटा हो तो -1. सो वील बी हैविंग -1, -2, -3. -1 पे क्लोज्ड और 0 पे ओपन. ओके, -1.5 सबसे बड़ा इंटीजर जो -2 से छोटा, जो -1.5 से छोटा हो. सो इट इज गोइंग टू बी -2. -2 से -3 तक बताइए. सबसे बड़ा इंटीजर जो -2.5 से छोटा हो तो इट इज गोइंग टू बी -3. और सबसे बड़ा इंटीजर जो -3.8 से छोटा हो वो होगा -4. सो -4 से -3 तक के लिए दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी -. I hope this graph is clear to everyone. Clear? इस फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कभी कभी फ्लोर फंक्शन के नाम से भी, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, बिकॉज इट गिव्स द लोवेस्ट इंटीजर ग्रेटर दैन दैट इंटीजर. तो उसका लोवेस्ट फ्लोर बताता है. दिस इज अ फ्लोर फंक्शन. ओके, इसकी प्रॉपर्टीज बता दीजिए. इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर, बट जो रेंज है वो है सिर्फ इंटीजर्स. डोमेन रियल नंबर्स, रेंज है इंटीजर्स. इंक्रीजिंग फंक्शन है, मेनी इज टू 1 है. ऑड इवन वी कैन नॉट डिफाइन फॉर दिस गाय ओवर हियर. ट्रू. एंड व्हाट वी कैन से, कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस, फॉर ऑल x belongs to z.
So for all integers this function is not continuous. Or what we can define increasing है, because the values are continuously increasing. I think that is all that we can define for here. Non-periodic भी है. So I hope this function is clear. इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा because this is a very important function. Greatest integer function और float function, greatest integer less than or equals to x. इसी तरीके से एक और फंक्शन डिफाइन होता है, उसे हम कहते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन. अब आपका असाइनमेंट है कि आप मुझे कल पता करके बताइए कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है और उसके लिए इन तरीके से सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करके बताइए. दिस आई एम लीविंग एज एन असाइनमेंट फॉर यू. हम कल डिस्कस करेंगे. जिस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, वैसे एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है. आप मुझे उसका दूसरा नाम बताइएगा, उसका नोटेशन बताइएगा, उसकी डेफिनेशन बताइएगा, उसका ग्राफ बताइएगा और उसकी प्रॉपर्टीज बताइएगा. ये आपके लिए असाइनमेंट है कल के लिए. यू हैव टू फाइंड अबाउट लीस्ट इंटीजर फंक्शन. आई एम लीविंग दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू गाइज. ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं. कल हम इसी टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे. टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट समवेयर और 12 फंक्शंस. कल हम आगे डिस्कस करेंगे. वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टेबल. सो वी हैव अ गुड रेंज ऑफ लाइक 30 to 40 फंक्शंस. हम सभी कल डिस्कस कर लेंगे. ओके, तब तक इन फंक्शंस को रिवाइज करिएगा. लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मुझे बता करके बताइएगा. ओके, बाय बाय.